Very good morning, students of class 10th. In economics, as we all know, that we are dealing with the chapter number 4, globalization and Indian economy. And here I am, Poonam Prasad, again in front of you. Today's topic that we are dealing is foreign trade and integration of markets. Students, first of all, we have to know about what do you mean by trade. Or we have to talk on a very important question that which was considered as the main channel through which different countries were connecting each other during the ancient period of time. Or we can say that which was considered as the main channel or main connecting link between the countries in ancient period. Your answer is foreign trade. Beta trade, Videshi Vyapar. Trade routes connecting India due to its strategic position in the northern eastern hemisphere, connects India with South Asia, Europe, Africa and Western world. Fine. So if one question or if the question is in one word, that what was the main reason behind the integration of, or you can say behind the connecting countries from ancient period of time and still it is going on, your answer should be foreign trade. Fine, students. So we have to talk that what is trade. Students, trade is basically two types. One is called as home trade. We also called it as domestic trade. हम इसको domestic trade भी बोलते हैं. Foreign trade and the another one is called as foreign trade. If we are talking about domestic trade, it deals with the wholesale trades, retail trading, है ना? आप लोगों ने देखा होगा wholesaling, producer to wholesaler, wholesaler to retailer and retailer to the consumers. Fine, students. And if we are talking about foreign trade, simply it is related with the import and export. So it is that within the area, within the destinations, within the crosses the boundaries of the seas, it crosses the boundaries of the land. This is what we call it as foreign trade. So in this particular topic, we are dealing with the meaning of foreign trade and what do you mean by the policies, foreign policies. Students, if we are talking about foreign trade, it means that it is also called as international trade. Simple, the trade between two or more countries like India trading with Japan, India trading with China, India trading with South African countries, African continent countries, India with continents countries of Europe, European continents like France, Germany, etc. with America. So all these are considered as a foreign trade. So this is what it means, the trade between the two or more countries. International trade, it also include foreign currencies of different countries and it is regulated by laws. It means there is some policies regarding the foreign trades. Some rules are there, some regulations are there made by the governments of the particular countries. बेटा एग्रीमेंट साइन होता है, ये बायलेटरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी साइन हो सकता है. यानी इंडिया बिटवीन द कंट्रीज, India among the countries.
तो जब बिटवीन द कंट्रीज होगा बायलैटरल एग्रीमेंट्स होगा ऑन ट्रेडिंग, अमंग द कंट्रीज होगा इट इज़ मल्टीलेटरल यू कैन से एग्रीमेंट ऑन द फॉरेन ट्रेडिंग्स। बेटा ये होता है क्योंकि विदेशी व्यापार के लिए गवर्नमेंट का कंपनीज तो करती हैं ट्रेडिंग, लेकिन जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लेकर आती हैं वो कौन होता है, वो कौन लेकर आता है, दैट इज़ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। अर्लियर आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट इफ the government is positive regarding the investment it is if the government is positive regarding the establishment of MNCs or investment of foreign currency in India, so obviously if we are talking about Indian perspective, ये बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंसिडर्ड एज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। चिल्ड्रन, यू हैव ऑल्सो लर्न दिस पर्टिकुलर topic in chapter number 7, that is lifelines of your Indian economy of your geography. Is that clear? So this is all about your foreign trades. Beta, what is foreign trade policy? Simple again. Foreign trade policies are the combinations or culminations of the two words, that is the foreign trade and policy, right? So foreign trade, as I have already told you in the earlier slide, that what is foreign trade? Beta, विदेशी व्यापार क्या है? That is the exchange of goods and services between the countries or between the nations, right? Goods can be defined as finished products. यहाँ पे जो goods होगा वो intermediate नहीं होगा, वो क्या होगा? Finished goods होगा. As intermediate goods used in producing other goods as agriculture products and foodstuff. So goods can be defined as finished goods, as intermediate goods. For example, iron and steel industry is there. It is utilized for the other industries because it is used to products, it is used for producing the other goods. We have already learned this final goods and intermediate goods in chapter number 2 of economics. And some agriculture products are there, some foodstuffs are there. So these are considered as the simple import export. Fine. When we are talking about the policy, so policy is set of rules and procedures. Spelling गलत हो सकती है बेटा. Simple, it is rules and procedures, rules and regulations made by the you can say implemented by, make by the government of the respective nations. So altogether it is called as meaning of foreign trade policies. Student, what should be the importance of foreign trade? Foreign trade क्या देता है? Actually foreign trade अगर होता है तो foreign trade का हम कह सकते हैं why the foreign trades are considered as the barometer of the economic development of a country. Example is, some points are there, like development of economy is there. Of course, foreign trade balanced रहेगा, import export when it is equalized, then हम कह सकते हैं that yes, it gives the development of a country's economy. ये कहीं ना कहीं जो कमियां होती हैं देशों को, उसको पूरा करने के लिए, to meet out the shortages, we are considered it as a foreign trade. For example, दवाइयों की कमी है, दवाइयाँ अगर भारत में किसी पर्टिकुलर दवाई की कमी है, भारत में मंगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कमी है, टेक्नोलॉजीज़ की कमी है, इसको मंगाया जा रहा है, हम कह सकते हैं टू फुलफिल द शॉर्टेजेस, है ना, टू मीट आउट द शॉर्टेजेस. Import of better living standards, of course, हम we are importing the better standards. हमने माइक्रो ओवन लिया, हमने वॉशिंग मशीन लिया, अदर कंट्रीज आ रही हैं, अदर कंपनीज ऑफ अ कंट्रीज दे आर कमिंग अप विद देयर ओन ब्रांड्स एंड वी आर परचेजिंग इट, वी आर हैविंग कैरिंग कैपेसिटी, हमें परचेजिंग पावर पैरिटी हमारे पास है, हम खरीद रहे हैं. इससे क्या होगा, ये बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को
जन्म देगा. वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, growth of economy in terms of production, employment, expansion, demand of other goods, utilization of resources in a proper manner. ये सब फॉरेन ट्रेड का हिस्सा है. इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है किस टर्म में? प्रोडक्शन, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, मोर एंड मोर गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. गुड्स अगर होगा, वी नीड वॉट? मैन पावर, वर्क फोर्स. सो वी जनरेट economy, we generate jobs, we create jobs, we generate employment. expansion होगा ट्रेडिंग्स का, बढ़ता चला जाएगा. जैसे कि अगर हम अभी देखें तो मोबाइल का मार्केट पूरे भारतवर्ष में ही क्या, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन है. डिमांड ऑफ अदर गुड्स, ऑफ कोर्स अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग सम अदर रेंजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. हमारे पास डिमांड्स होंगे, टैबलेट्स की डिमांड्स होंगी, लैपटॉप की डिमांड्स होंगे. तो इट मीन्स दैट कनेक्टेड टू सम अदर गुड्स और गुड्स, सिंपल द डिफरेंट अदर गुड्स कैन बी demanded, can be in demand. Then we can say proper utilization or the utilization of resources in a planned manner. जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ फ्रूटफुल मैनर. सो इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड इट गिव्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट foreign exchange. It means foreign revenue can be generated through the foreign trade. भारत में अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, भारत के रॉ मटेरियल्स बाहर के देशों में बेचे जाते हैं और अगर भारत फिनिश गुड्स को भी बाहर के देशों में बेचे तो इंडिया अर्न enormous, you can say, foreign exchange, which ultimately leads to the development, economic development of a country. Is that clear, students? So this is all about the importance of the foreign trade. Beta, some basic functions of foreign trade are also there, जो मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया है, वो मैं आपको लेटर ऑन उस पर डिस्कस करूँगी. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वॉट एक वर्ड हम लोगों ने इसके लिए लिया था इस टॉपिक में, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. बेटा हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में जाना, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में जाना, बट व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट, तो वी आर ऑल नो द प्लेस वेयर द बाइंग एंड द सेलिंग इज डन, प्रोसेस जो होता है. बट व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज बेसिकली एन एक्शन और द प्रोसेस for joining or mixing with the different group of the people. It means that here अगर हम बात करें तो the business or the trade integration is there, business integration is there, producers मिल रहे हैं, consumers मिल रहे हैं, technologies मिल रही हैं, countries मिल रहे हैं, revenues मिल रहे हैं. Fine. सो वी कॉल्ड इट एज इंटीग्रेशन. यानी अगर हम कहें कि आज का विश्व, यानी कि द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग नाउ अ डेज, इट इज ट्रू बेटा. हाउ कैन इट बी ट्रू? इट कैन बी ट्रू बिकॉज because as an Indian I am able to avail the product produced in that product produced in the USA or that product produced in Japan. अगर आज मैं कोई भी सामान ले रही हूँ, जैसे कि if I am having a car of Ford company, it means that Ford company is associated with USA, तो मुझे USA की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मुझे अवेल, आई एम एबल टू अवेल दैट. फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज इंटीग्रेशन. भारत का भी स्पाइसेस बाहर के देशों में दिखाई देता है, भारत का रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कॉटन बाहर के देशों में दिखाई देता है, भारत के फूड स्टफ्स बाहर दिखाई देते हैं बेटा, और भारत का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा हाईली इन डिमांड है इन द वर्ल्ड मार्केट.
So we called it as integration. It's clear, beta? Huh? So it is about the foreign trade and integration of market. It means now the markets are one, globally joined by the producers, by the consumers. Students, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड, तो इससे फ़ायदा किसका? तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू बोथ, किस किस को? फर्स्ट प्रोड्यूसर्स को, दूसरा कंज्यूमर्स को और बायर्स को. कैसे बेटा? फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स to reach beyond the domestic market, that is the market of their own countries. अभी तक जो सेलर्स थे, है ना बेटा, प्रोड्यूसर्स थे, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, वो सिर्फ प्रोड्यूस करते थे फॉर सेलिंग पर्पस. किसके लिए? कि हम अपने देश में बनाएंगे, अपने देश में ही बेचेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के लिए. लेकिन अब उन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नाउ द मार्केट इज़ इंटीग्रेटिंग, तो इसके थ्रू अब उन्होंने क्या किया? डोमेस्टिक मार्केट में तो उन्होंने अपना प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस प्रेजेंट किया ही है, लेकिन अब बाहर के देशों में भी करेंगे. अमूल इंडिया का बेस्ट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो वो अमूल बाहर भी देशों को बेचता है. ठीक. दूसरा, if we are talking about the second point, producers can sell their produce not only, here beta I am explaining this particular point of the first one. Producers can sell their products not only in market located within the country, but can also compete in the market located in the countries of the world. This is give in terms of great opportunity to the producers to sell their products beyond the boundaries by exporting or expanding their goods. अगर हम कहें कि इंडिया में गोदरेज इज़ अ कंपनी और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इज़ अ कंपनी, इफ़ इंडिया रिलायंस इज़ अ कंपनी, जो इंडियन बेस्ड कंपनी, अगर वो बाहर के देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है, तो वो बाहर के मार्केट को compete करने के लिए वो नए नए डिज़ाइंस, नए नए रिसर्च करेगी अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? प्रोड्यूसर्स के लिए बेटा, है ना. अगर हम बात करते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर का ही नहीं, बायर्स को भी, तो बायर्स कैन अवेल द गुड्स प्रोड्यूस्ड in another country and also what is domestically produced. बायर्स के पास चॉइसेस आ गए. एक पहला, वो जो अपने कंट्री में, जो अपनी कंट्री की प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस करके दे रहे थे. दूसरा, जो बाहर की कंपनीज उसको दे रही हैं. एडिडास एंड बाटा इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, एडिडास एंड लखानी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, एडिडास एंड खादिम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. Is that clear, children? It means the buyers can have the choices among the goods of local market as well as the imported goods from the foreign market. यहाँ पे buyers को एक, now the buyers avail the goods in, और इसके साथ साथ choices बहुत ज़्यादा हैं buyers के पास. They can choose prices of similar goods in the two markets. It टेंड्स टू बिकम इक्वल. अब देखेंगे आप, ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता है बेटा. अगर हम कहें 28 लीटर का LG आपका माइक्रो ओवन, फॉर इट कम्स टू 17,000, हो सकता है वर्लपूल का 28,000 हो, 18,000 हो सकता है जो मार्केट इंडिया में हो, जो मार्केट इंडियन एक रीजन में हो, वही चीज़ दूसरे रीजन में वो उसी रेट में. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो प्राइसेस हैं सिमिलर गुड्स के इन द टू मार्केट्स वो इक्वल रहेंगे. इसके अलावा प्रोड्यूसर्स इन द टू मार्केट्स कैन नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर. दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बेटा. जो प्रोड्यूसर्स हैं
दे कैन क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर. अच्छा क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए अल्टीमेटली हु इज द किंग? कंज्यूमर इज द किंग. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द किंग. वो सामान बनाता रहे, कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे तो बेटा बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाएंगी. तो प्रोड्यूसर, उसको पता है कि अगर मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट करूँगा तो मेरा सामान नहीं बिकेगा. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किसकी भावना आ रही है? कंपटीशन की. नाउ इट कम्स टू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग द producers. Fine students, now the producers are more prone towards to get good to produce goods in a, you can say in a वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं. अब आपके पास मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ बेटा. ये एग्जाम्पल है कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ आई, उसका इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ा? इज दैट क्लियर? सो सिंपल. आप लोगों ने देखा, अभी तो हमने बैन किया हुआ है चाइनीज़ टॉयज़, चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ अप्लाइंसेस को. बट एक टाइम पीरियड था कि इंडिया इज़ कॉल्ड एज द हब फॉर द चाइनीज़ मार्केट. इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ हब फॉर द चाइनीज़ प्रोड्यूसर बेटा. तो चाइना की एक कंपनी है, उसने चाइनीज़ टॉयज़ बेचा उसने भारत को. प्लास्टिक के एक्सपोर्ट किया उसने टॉयज़ भारतों को. और भारतीयों जो ऑलरेडी अपने टॉयज़ बेच रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इंडियंस जो भी टॉयज़ बना रहे थे उसको वो काफ़ी भारी कीमतों में, ज़्यादा कीमतों में वो इंडियन मार्केट में ही बेचा कर रहे थे. चाइनीज़ टॉयज़ ने एक अपॉर्चुनिटी देखी. उन्होंने एक्सपोर्ट किया प्लास्टिक टॉयज़ को इंडिया में एट अ चीपर प्राइस और विद द न्यू डिज़ाइन. बेटा, जो इंडियंस टॉय मेकर्स टॉयज़ बेच रहे थे एट द हाई प्राइस, फ़ायदा किसको हुआ? इंडियन बायर्स को. इंडियन बायर्स के पास दो ऑप्शन आ गए खिलौने में, इंडियन टॉयज़ एंड चाइनीज़ टॉयज़. यहाँ पे चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर. वाई? बिकॉज चाइनीज़ टॉयज़ आर cheaper in prices with the new designs as compared to Indian toys. So Chinese toys has captured nearly 70 to 80% of Indian toy market because of the toys are cheaper with the good designs. बेटा, मैंने भी अपने बच्चे के लिए ख़रीदा था. जब डॉक्टर सेट, जब मुझे याद आ रहा है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो असली का स्टेथोस्कोप है. कान में लगाने के बाद हार्ट बीट्स उसमें सुनाई दे रहा था. और मैंने कभी अपने टाइम पीरियड में उसको नहीं देखा, इस टाइप का खिलौना. रिज़ल्ट क्या हुआ बेटा? व्हाट शुड बी द रेप्रिकॉशंस ऑफ दिस चाइनीज़ टॉयज़? चाइनीज़ टॉयज़ के आने से भारत का क्या हुआ? पहला, अगर हम इंडियन बायर्स की बात करें, इंडियन बायर्स को तो फ़ायदा मिला. चॉइस था बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियन चॉइस. गुड कंपटीशन अमंग चाइनीज़ टॉयज़ एंड इंडियन चॉइस. जो चाइनीज़ टॉयज़ था उसने प्रूफ इट बेटर प्रूफ देन इंडियन इंडियन टॉयज़. और चाइनीज़ टॉयज़ मेकर के लिए एक तरीके का अवसर बना टू एक्सपैंड द बिजनेस इन इंडिया. उन्होंने देखा एंड दे हैव कैप्चर्ड इंडियन मार्केट. और वाकई में बेटा तरह तरह के डिज़ाइंस, रोबोट्स, पता नहीं, डांसिंग डॉल्स, डांसिंग कार्स जैसे नहीं होती हैं, रिमोट कार, सॉरी, डांसिंग वो जो कहते नहीं है डॉल्स एंड जो बाबा डॉल्स होते हैं, वो आपके आए. छोटे छोटे कार जिसमें बच्चों के लिए बैठ कर वो दे कैन राइड. तो इस तरह की चीज़ें भारत में आई. अलग अलग
डिज़ाइन से, बट वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन टॉय मेकर्स वो काफ़ी सस्ते थे. यहाँ पे इंडियन टॉय मेकर्स के लिए क्या घाटा हुआ बेटा? सिंपल सा थे, दे लॉसेस द मार्केट, इंडियन मार्केट ही उन्होंने लूज़ कर दिया. दे फेस लॉसेस, their toys are selling much less than the Chinese toys, or ultimately China has captured Indian market in terms of toys, Chinese toys. Fine students. So this is all about the foreign trade and integration of the market beta. In result we can say that एक बहुत important question आता है that foreign trade thus results in connecting the market or integration of market in different countries. How we can say? Because of opening of trade, goods travel from one market to another. Choices of goods in market rises. Just according to the buyers. Yeah, already I have given you. लेकिन ये question बहुत बार पूछा गया है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट क्यों एक दूसरे से मार्केट में एकीकरण कैसे हो गया. Choices of goods in market rises. Prices somewhere equal. Producers in the two countries now compete against each other. Buyers can now avail the goods in competitive prices beta. By this, we have completed this particular topic of today. Students, मैं आपको कल tomorrow I would like to take your globalization and what are the factors influencing the globalization. Fine. Till then, children, watch the video thoroughly, examples के साथ, or you have to write down the notes that I would like to give you in your class, right? So till then, take care and God bless you.